अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अब आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, थैंक यू। आप लेक्चर स्टार्ट कर दें प्लीज। ओके प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Sayyid Mohsin Raza Bukhari, Assistant Professor of Psychology from Government Islamia Graduate College Civil Lines, Lahore. I respected colleagues. Today, the things we are going to talk about, they are actually the experiences. They are actually the things that I've gone through. I just want to share them with you people. I'm not going to say or share something very different, something new, or something that you people have never heard of earlier. Actually, we are going to talk about something that is not that uncommon, but highly important. And before this formal beginning, I want to share something with you people. And the thing that I am going to share with you is very interesting, like you might have experienced as well. And I have seen there was a time when there were two people, two lecturers basically. They joined the college at the same time with the same degrees and the same level of education. And what happened after 5 years, the both of them who were having the same level of education, same level of experience, and almost same level of workload. One of them, he got so much reputation that the students, they start to wait for his classes. And his colleagues, they were trusting him a lot, and the administration start to rely that person. Everyone actually, most of the time, waiting for that person. And on the other side, the other lecturer who joined beside him, and that lecturer actually was a competent lecturer, but he was invisible. ना ही तो स्टूडेंट्स उनकी क्लास का बहुत ज्यादा इंतजार करने में कोई इंटरेस्ट रखते थे, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन और कोलीग्स जो हैं वो ज्यादातर उनके गिर्द खड़े इकट्ठे हुए होते थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक ही वक्त में दो लेक्चरर सेम टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ डिग्री है, हर चीज सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो क्या ऐसा हुआ कि 5 साल के बाद उनमें से एक जो है वो द मोस्ट सोट आफ्टर लेक्चरर बन गया फॉर द स्टूडेंट्स और अपने कोलीग्स के लिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसका दूसरा जो कोलीग है उसको कोई भी नहीं जानता। कोई ना जानने से मुराद मेरी ये है कि जिस तरह से पहले लेक्चरर को सब जानते हैं, सब उसके इंतजार में होते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, द अदर वन इज नॉट दैट मच पॉपुलर। सो हुआ क्या? व्हाट वाज द डिफरेंस? एक्चुअली द डिफरेंस वाज द पर्सनैलिटी, बिकॉज द वे the lecturer communicated, the way he handled the pressure, the way he resolved various conflicts,
एक्चुअली हियर एक्चुअली लाइज द डिफरेंस कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें और आपकी टीचिंग में, दोनों में एक फर्क है। टीचिंग जस्ट हमसे डिमांड करती है नॉलेज। अगर तो नॉलेज की बात की जाए तो हमने देखा कि दोनों में क्या फर्क था। इंटेलिजेंस, नॉट एट ऑल। लेवल ऑफ डिग्रीज, नॉट एट ऑल। Experience, not at all. Actually, everything was almost there. There was only one thing, as I have mentioned. How did they communicate with the students? How did they handle the pressure? How did they resolve the conflicts? So here actually lies the difference. So what I have learned out of it, knowledge may take you into the classroom, but this is the personality that decides how you will leave the impact inside the classroom. So today we are going to talk about that invisible force which is called personality. And we will see how this personality actually shapes the behavior, attitudes, habits, and even the personality of the students as well. So this is a very interesting topic in this regard. What actually we lack in our life most of the time that actually becomes an obstacle in our growth, in our promotion. So the question is, what personality is? When we talk about personality, what actually comes to our minds? And I would like to ask some of the respected colleagues कि आप में से कोई पर्सनैलिटी को डिफाइन करना चाहे, आप प्लीज अलाउ करेंगे जस्ट फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स। कोई पर्सनैलिटी को एलेबोरेट करना चाहे, कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, माइंड के अंदर क्या आप रखते हैं, आप में से कोई एक आध प्लीज ओके, रेज योर। मैं माइक अलाउ कर देती हूँ। ओके, 1 सेकंड जी प्लीज। जी, मैंने माइक अलाउ कर दिया। आप किसी जी का भी नेम प्लीज, लेके क्वेश्चन पूछ लें। आप में से कोई डिफाइन करना चाहे कि पर्सनैलिटी आपके माइंड में क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। पर्सनैलिटी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। This is Sayyid Ali Raza from Iqbal. सर Personality defined in monolithic terms. It basically consists of a set of values that a person exhibits, their traits, their behaviors, a person's outlook on life, their perception of the world, their social skills, their stress management skills. So I believe that there is a wide array of components that form a personality. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स प्लीज। अस्सलाम वालेकुम टीम। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम जी। मुझे कहते हैं रिगत नौरीन वसर फ्रॉम फैसलाबाद। जिस सर ने कहा बहुत सारी क्वालिटीज उन्होंने बताई, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्किल्स वगैरह ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि बहुत बात की बात है। जब आप एंटर होते हैं क्लास में तो तब सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखता है। तो उसका यानी आपका कैसे आप आए हैं या कैसे आप बोलते हैं या आपका ड्रेस जो है वो कैसा है, उसके बाद जब आप बोलेंगे तो उसके बाद स्किल्स जो है वो सामने आएंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो पर्सनालिटी जो है वो है कि जो आते ही आपको जो है वो, मेरे हिसाब से ये स्किल्स और ये सारी चीजें तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, बट ये बात की बात है, मतलब मुझे थैंक यू ऐसा मैम, लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो सो नाइस ऑफ यू। जी आप दोनों हजरात ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली। प्लीज माइक जरा ऑफ कर दीजिएगा, बास का दरमियान में कोई आवाज आती है।
तो डिस्टर्बेंस कोई नॉइस क्रिएट ना हो। Thank you very much for sharing your experience and your knowledge with me. Actually, both of you are correct. जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी को हम जस्ट अपीयरेंस के साथ जो है रिलेट नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सर ने पहले बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एलेबोरेट किया इसको। इसका जो कॉन्सेप्ट है पर्सनैलिटी का, वो जस्ट हमारी अपीयरेंस तक महदूद नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे पहले जो चीज़ किसी को नज़र आती है वो आपकी लुक्स हैं, आपकी अपीयरेंस है, बट इट डजंट मीन दैट दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी। द कॉन्सेप्ट और the term actually is having more than just the outer look or the appearance of a person. It involves not only your outer look, but at the same time your attitudes, your behaviors, your characteristics, your thinking pattern, your emotions. Actually, the whole of it, the combination of various aspects collectively make you what you actually are. So if we try to limit the definition of personality just to the appearance, I think it wouldn't be sufficient. So for defining personality, we have to look at the characteristics, the behaviors, the attitudes, the emotions, the habitual the habits or the thinking pattern of a person. Because when we say that you are having a unique personality, basically why you are unique, why we say that you are unique, actually your uniqueness depends upon the combination of all these things. You learn behaviors in your life, you learn different habits in your life, you learn thinking pattern, how to think, you learn it, how and you just like develop the liking and disliking about something, you develop the attitudes. So your liking, your disliking, your skills, your habits or thinking pattern, they all combine together to make you what you are. And then we say that you have this kind of personality or you have that kind of personality. तो लिहाजा पर्सनैलिटी को लिमिट कर देना जस्ट एक एस्पेक्ट से ये काफी नहीं होगा। हमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, आउटर लुक से लेकर इसके जो साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये तो बात होगी पर्सनैलिटी की। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो सिर्फ एक चीज पर महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें टेक्निकली कि पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हियर इज द डेफिनेशन। Personality refers to the unique set of characteristics, traits, behaviors, and patterns of thinking that define an individual's way of being in the world. So these are the things where we see the characteristics like your confidence, your integrity, your honesty, your responsibility, So this is just like a few of the characteristics. Basically, it is all about your values. And then we also see your traits like your conscientiousness, your openness, whether you are the public speaker, whether you have that courage to confront the audience or not, resilience, encouragement, all these things, they come under it. And then we also see that the thinking pattern, it means basically you are talking about the habits. Whenever we talk about the patterns of thinking, basically we're talking about the habits, what kind of habits you have developed. So this is actually the technical definition of the personality. We are least interested in it. Actually, what we are focusing on, the concept basically, that actually what we want to grasp. So next, if we move to the what is personality development. So here when we say personality development, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिन ट्रेड्स की हम बात करते हैं, जिस बिहेवियर की हम बात करते हैं, जिन स्किल्स की हम बात करते हैं, तो जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बुनियादी तौर पर आपकी कैपेसिटीज को बिल्ड करने का नाम जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लाइक योर
you have got the potential, you have got the talent, you have the skills, but you haven't developed those skills. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो इससे क्या मुराद है हमारी ये मुराद है कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एक एसेट मौजूद है, लेकिन उस पोटेंशियल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। लाइक आप क्रिएटिव हैं, बट द क्वेश्चन इज, आप क्रिएटिव हैं लेकिन उस क्रिएटिविटी का जो इजहार है, उस इजहार को आप कैसे, कहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कौन सी सेटिंग्स हैं, वो कौन सा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी जो है वो उसको शो कर सकते हैं। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है क्लासरूम के अंदर, तो हम देखते हैं कि समटाइम्स कुछ असाज़ा जो है, जो हमारा भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा लाइफ के अंदर, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, हम उसको उस तरह की फ्रीडम नहीं देते, उस तरह की चीज़ों के तक एक्सेस नहीं देते जहाँ पे जाकर वो अपनी उस क्रिएटिविटी का प्रॉपर वे में इजहार कर पाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? उसकी वजह एक ये भी होती है कि बतौर उस्ताद आपकी पर्सनैलिटी है जो बाकियों से आपको मुनफरिद कर रही है, और आप एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी क्लास के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो क्रिएटिविटी की बात हम जब मैंने बात की, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अगर क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट जो है, कंपोनेंट जो है, ये डोमिनेट कर रहा होगा, ये रिफाइंड होगा, इसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को आप इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी है, तो यकीनन आप स्टूडेंट्स को भी वो फ्रीडम देंगे। आप स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस कि जो नॉर्मली हम डिस्करेज कर देते हैं समटाइम्स, तो अब उनको भी हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, और वे में जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं चीज़ों को, हम उनको अलाउ करेंगे, उस तरह का एनवायरनमेंट हम उनके लिए क्रिएट करेंगे। लेकिन वो सारा एनवायरनमेंट कब क्रिएट होगा? ये सारा एनवायरनमेंट तब क्रिएट होगा कि जब हम खुद इन सारी चीज़ों को ऑन कर रहे होंगे। लिहाजा जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, या आज हमने जो सेशन आप यहाँ पे जो कंडक्ट कर रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वी ऑल हैव द टैलेंट, वी ऑल हैव द पोटेंशियल, बट अगर उस टैलेंट को, हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज ना करें, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट ना करें, तो फिर क्या होगा? फिर वो टैलेंट रहेगा लेकिन ग्रोथ वाला एलिमेंट जो है वो वहां से लैग कर जाएगा। इसी तरह से आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, ऑलरेडी हैं, वी ऑल आर टीचर्स एंड वी हैव गॉट द कम्युनिकेशन स्किल्स, नो डाउट, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट इन कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफाइन करने की समटाइम्स हमें जरूरत पड़ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है कम्युनिकेशन, क्योंकि हम टीचर हैं तो लिहाजा एवरीथिंग इज ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। वी actually all the time need to get some kind of improvement. Sometimes in some area we feel really very good, और वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं कि जहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस होती है, या ग्रे एरियाज होते हैं, या इंप्रूवमेंट के एरियाज होते हैं जहां हमें चाहिए होती है इंप्रूवमेंट। लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट तो है, हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, ओके, इट्स अ स्किल, वी कैन लर्न इट, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ अस have learned the skill of stress management? How many of us have developed negotiation skills? How many of us have developed the team building skills? And how many are there who actually knows how to manage their time? So there is a big question, that there are so many things to do in our life. Actually, we can't say that we have mastered all the skills in the best of the ways. No, it's not actually possible. Actually, it needs time, और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है, ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही होती है। तो जब हम बात करते हैं वीकनेस की, तो वीकनेस का मतलब ये नहीं है कोई ऐसी चीज है कि जो काबिल एतराज है। बेसिकली जब हम बात वीकनेस की करते हैं, तो आई ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट अ वीकनेस, बेसिकली दिस इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन दैट सर्टेन एरिया। इफ यू आर, आई मीन, lacking some skill on the stress management, you should learn it, you may learn it. Actually, it is not like that कि अगर आपके पास है तो हम इसको हाइड करें, छुपाएं। नो,
हमारे पास वो स्किल है कि हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत होती है। तो आज जो बात हम कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, यानी वो सारी स्किल्स, वो सारी वैल्यूज, वो सारी हैबिट्स कि जो ऑलरेडी हमारी जिंदगी के अंदर हैं लेकिन हम उसको मजीद रिफाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए उन चीजों के अंदर जहां पे थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी है तो उनको रिफाइन करने के लिए हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत महसूस हो रही होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस किस हवाले से होती है कि वंस यू डेवलप योर पर्सनैलिटी, व्हाट एक्चुअली इट कैरीज इनसाइड इट, what are the fruits that we may get out of it। तो उसमें जो इसके साथ अटैच्ड जो बेनिफिट्स हैं उनमें से एक चीज है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है इट कम्स, हाउ डज इट कम? There are various ways to get confidence, and one of the ways to get confidence is to get knowledge, to get information, to learn something. When we know how to handle the difficult students in the classroom, if we know the techniques, if we have that skill, if we actually know how to uh, resolve conflicts with the administration, and if we come to know that how we can build team, so when we have got these skills, actually we get the confidence। एक तरफ तो हमारी पर्सनैलिटी का यानी एक एक पहलू है, एक कंपोनेंट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे बिल्ड करना है, क्लास के अंदर जो डिफिकल्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी कैसे हैंडलिंग करनी है। तो जैसे जैसे हम लर्न करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस आप में आएगा तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए हम अपनी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, वो पर्पस क्या है, अल्टीमेट हमारा एंड क्या है, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हम जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेट गोल्स हैं, जो सेट मिशन है, जो इनका सेट विजन है, हम उसको अचीव करें। तो जब हम उस परसूट में लगे होते हैं, जब हम क्वालिटी टीचिंग की तरफ क्वालिटी टीचिंग की बात कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी टीचिंग जो है कब क्वालिटी उसमें आएगी, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब आप में जो है कुछ लर्न करने का एक पैशन जो है उसको आप वाकयतन हकीकत में आप जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं, उसको एक मुजस्सम फार्म के अंदर जो है वो आप लेकर सामने आते हैं। तो चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंस आपको देती हैं। और इसमें अभी जिन चीज़ों का मैंने इजहार किया, ये सारी वो स्किल्स हैं कि जो बुनियादी तौर पर हार्ड स्किल्स नहीं है। अगर आपने क्लास को मैनेज करना सीख लिया है कि हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम, तो ये बुनियादी तौर पर स्किल है, एक सॉफ्ट स्किल है। और इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ कि आपने निगोशिएशन की स्किल्स सीख ली, तो ये भी एक स्किल है और सॉफ्ट स्किल है। तो ये वो लाइफ स्किल्स हैं कि जो हमें हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है पर्सनैलिटी के, वो एक तरफ अगर उसमें बेहतरी आती है तो उसका इफेक्ट जो होता है, जो इसका इम्पैक्ट होता है, वो ओवरऑल बहुत सारे अदर एरियाज जिस पे पड़ रहा होता है। तो अकेला एक कॉन्फिडेंस जो है, उस कॉन्फिडेंस के जरिए ना सिर्फ हमारी क्वालिटी टीचिंग होगी, स्टूडेंट्स की हैंडलिंग बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन की हमारी जो एबिलिटीज हैं उसके अंदर जो है बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बात जो है उसके अंदर एक वर्थ आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इसके ऊपर काम करना जो है वो क्यों क्रूशल है, इसलिए क्रूशल है, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है, तो बुनियादी तौर पर आप उस इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर रहे होते हैं जिस इंस्टीट्यूशन का आप पार्ट एंड पार्सल हैं। क्योंकि अदारे जो हैं वो अफराद के साथ होते हैं, और अफराद अगर जितना ज्यादा रिफाइंड वे में काम कर रहे होंगे, जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उसी तरह से जो आपके अदारे का इमेज है, परसेप्शन है, वो भी उसी तरह से बाहर जा रही होती है। तो लिहाजा एक फ्रूट तो इसका है कॉन्फिडेंस। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी हाउ डज इट कम? क्रेडिबिलिटी तब आती है कि व्हाट एक्चुअली यू डू एंड व्हाट यू से, देयर इजंट एनी डिफरेंस। हमारे कहने में और करने में दोनों में जो है किसी किस्म का कोई फर्क ना आए, यानी जो हम कहते हैं वो करते भी हैं, हमारे एक्शन में और हमारे वर्ड्स के अंदर कहीं किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। लाइक स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि
टाइम पे आपने क्लास में आना है और सुबह 8 बजे आपकी क्लास का आगाज हो जाएगा, तो इट मीन्स कि अगले दिन आप 8 बजे क्लास में मौजूद होते हैं। द नेक्स्ट डे भी आप 8 बजे एग्जैक्ट वहां पे मौजूद होते हैं। तो जब आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक कर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो क्रेडिबिलिटी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। आपकी रिलायबिलिटी ही आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लेकर आती है। तो क्रेडिबिलिटी डेवलप करना यानी पर्सनैलिटी का आपका जो एक अहम एक जो एस्पेक्ट है, यू हैव टू बिकम क्रेडिबल। एंड द थर्ड वन इज इंटरेक्शन। क्यों सिग्निफिकेंट है पर्सनैलिटी का डेवलप करना? हेल्प्स यू टू इंटरेक्ट विद वेरियस काइंड ऑफ पीपल, डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। आप अगर देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो किसी एक खास बैकग्राउंड से नहीं आ रहे होते, उनमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसी तरह से हमें समटाइम अपने जूनियर्स के साथ, जूनियर लेक्चरर्स के साथ, जो नए लोग हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, हमें अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, हमें अपने सीनियर के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है। तो ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं? ऑलरेडी हम जानते हैं, ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने पोटेंशियल को डेवलप करने की, यानी हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चीज़ों की शुरू कर दें, रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, अगर हम अपने जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना जो है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हम कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और इंटरेक्शन जो है, दे ऑल एक्चुअली हेल्प यू टू डेवलप मोर। और इसके अलावा लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, कि जब आप कॉन्फिडेंस भी होगा, क्रेडिबिलिटी भी बन जाएगी, इंटरेक्शन के भाई आर्ट आपके पास आ गया, तो ऑब्वियसली आप लीड भी कर रहे होंगे, मोटिवेट भी कर रहे होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द लीडर फॉर द स्टूडेंट्स। और हम में से तो हर एक टीचर जो है वो एक लीडिंग रोल जो है ऑलरेडी अदा कर रहा है, और लीडिंग के साथ साथ मोटिवेटिंग रोल भी अदा कर रहा होता है। आपका एक कहा हुआ लफ्ज जो है बच्चे के लिए, वो कहाँ से कहाँ उसको लेकर जा सकता है। अगर वो नेगेटिव हो तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जो है समटाइम बच्चे जो है उसको किस अंदाज में लेते हैं, कितना डिमोटिवेटेड फील कर जाते हैं। तो इसलिए जो टीचर के जो अल्फाज होंगे वो बहुत ज्यादा जो है वो हम बात कर किसी का थोड़ा सा इस तरह का क्लास के अंदर बच्चे को किसी का थोड़ा सा मजाक में कोई बात कर देते हैं, तो हो सकता है वो उसको कैसे फील करे, समटाइम्स वो डैमेजिंग हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, तो इसका जो ब्राइटर साइड देखा जाए, अगर हम उस स्टूडेंट को जहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चा जो है वो शाई फील कर रहा है, अगर हम उसके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जहाँ पे हम उसको शाबाश दे दें, तो ऑब्वियसली वो एक शाबाश जो है उसको उस क्लासरूम से लेकर कहीं हो सकता है कि कल को उसको पूरे मुल्क का एक लीडर बना दे। वो आपकी एक छोटी सी शाबाश जो है, आपने देखा होगा बहुत सारी मिसालें आपके सामने होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है मैं कर रहा जो कि आपके साथ नहीं होगी। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छे महकमों के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वो काम कर रहे होंगे, जिसपे आप फख्र कर रहे होंगे, और वो भी आपको बता रहे होंगे कि सर आपका फला वक्त क्लास में, क्लास से बाहर किसी स्टेज के ऊपर नाम लेना, शाबाश देना जो है, उसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हुआ हूँ। तो वो हमें तो लग रहा होता है हमने तो रूटीन में बात अल्फाज जो है इस्तेमाल किए, लेकिन वो रूटीन के अल्फाज हमारे लिए हो सकते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकते। दैट्स वाई एक डेवलप जो पर्सनालिटी होती है उसमें ये सारी चीज़ें जो है लाजमी बात है कि बड़ी क्लैरिटी के साथ होती है कि हमने किस तरह के अल्फाज जो है स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की इंटरेक्शन करनी है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से क्रेडिबिलिटी हमने डेवलप करनी है। और एंड के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा बेशुमार इसके बेनिफिट्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द टीचर्स फॉर द इज द फोरमोस्ट एस्पेक्ट और कंपोनेंट ऑफ अ टीचर। तो अब इसमें अगर देखा जाए कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यहां तक नहीं है कि व्हाट वी से, द 7% व्हाट वी से एक्चुअली वर्क्स, और जो 93% है वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी रिस्पेक्टेबल कोलीग हैं उन्होंने डिफाइन किया पर्सनैलिटी के हवाले से कि पर्सनैलिटी उनके नज़दीक ये है कि हम कहते तो बाद में है कुछ, और उससे पहले पहला कदम जब हम क्लास में रखते हैं तो हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट एक्चुअली हैज़ द इफेक्ट।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जो आपकी टोन है वॉइस की और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, यानी जो नॉन वर्बल जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ये जो है ये 93% जो इफेक्ट कर रही होती है, और 7% जो होता है वो आपका जो वर्ड्स हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी का जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लुएंस है, वो बच्चों पर कॉन्शियसली और समटाइम अनकॉन्शियसली बहुत गहरा पड़ रहा होता है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, बात का होता है कि हम नॉर्मली कहा जाता है कि ये नहीं है कि व्हाट डिड यू से इन द क्लास टू द स्टूडेंट, एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ डिड यू मेक देम फील इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स को आपने कैसा फील करवाया, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि व्हाई शुड वी go through this session, why should go after the personality development। तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो हमने देखे। अब पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमें वो बनाते हैं जो आज हम हैं। तो उनमें से एक है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम हेरिडिटी, ब्रेन और फिजिकल फीचर्स देखते हैं कि बायोलॉजिकली मेरा जो भी इस वक्त स्ट्रक्चर है, मेरे स्किन का जो भी कॉम्प्लेक्शन है, मेरी आइज का जो भी कलर है, ये सारे की सारी जो देन है ये एक बायोलॉजिकल फीचर है, ये हेरिडिटी की देन है, ये जीन्स की देन है। और हम में से जितने भी हैं, चाहे उसकी जो हाइट है किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी का कलर जो है कम्प्लेक्शन फेयर है, किसी का इतना फेयर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई जरा कम इंटेलिजेंट है, और किसी की हाइट ज्यादा, किसी की हाइट कम। तो ये सारे वो फीचर्स हैं कि जो हेरिडिटी का मोहताज होते हैं। इसमें हम अगर देखें तो कोई एक पर्टिकुलर जो है चीज जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी कमांड नहीं है उसके ऊपर। तो वो लिहाजा जो चीजें हमारे पर्सनैलिटी के अंदर, लाइक यहाँ पे अगर हम कहें कॉन्सेंशियसनेस है, कोई ऐसा फर्द भी है कि जो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर है, कोई करेजियस है, कोई कहीं पे भी जाता है इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है। तो ये जो स्किल है इनिशिएटिव की जिसको हम कह रहे होते हैं, ये बेसिकली हेरिडिटी से ताल्लुक रखता है। इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी से ताल्लुक रखती है, जो आपके पेरेंट्स से आ रही होती है। तो इसलिए हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस होगी उसको आपने एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमें बायोलॉजिकली हम पर जो है वो हमें मिले होते हैं। वो किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब अगर अगली हम बात करें तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट है आपकी फैमिली और सोशल फैक्टर्स। फैमिली और सोशल जो है फैक्टर्स है, उसके अंदर क्या है कि आपकी सोशलाइजेशन का प्रोसेस, आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर आप में से कोई इस वक्त रेजिलियंट है, अगर आप में से इस वक्त कोई कॉन्फिडेंट है, अगर आप में से कोई इस वक्त जो है वो वैल्यूज की रिस्पेक्ट करने वाला है, तो ये कहाँ से फैक्टर्स आ रहे हैं? ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हम लर्न कर रहे होते हैं सोसाइटी से। मसलन आपका सोशलाइजेशन जो है, लाइक व्हाट यू एक्चुअली लर्न, योर जो 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 आपकी वैल्यूज हैं, जो कस्टम्स हैं, अगर आप बाहर किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आप जो है अपने स्टूडेंट्स को इज्जत से एहतराम से बुला रहे हैं, तो ये जो ऐसे अफराद के जिसमें अब बाज़ होता है कि हम कहते हैं कि जी फेवरेटिज्म है, बाज़ ज़ाक़ात हम कहते हैं जी आप न्यूट्रल हैं। तो ये जो चीज़ें हम लर्न कर रहे होते हैं, ये हमारी सोशलाइजेशन का हमारा जो है वो एक प्रोसेस का हिस्सा होता है कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से लर्न करते हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स हैं अपनी फैमिली से लर्न करते हैं। अपने सामने जो हमारा रोल मॉडल है, जो जिसकी पहले मैं बात कर चुका हूँ कि अ, हम बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी किसी ने डेवलप की होगी, हमारे सामने भी कोई रोल मॉडल्स होंगे, हमारा भी एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होगा। जो फर्द ज़्यादा एडमायर किया जाता है, बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। अगर फैमिली के अंदर आपकी ऑनर है, रिस्पेक्ट है, सब आपको लाइक करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। इन द सेम मैनर, इन द क्लासरूम और इन द इंस्टीट्यूशन, इफ वी हैव अ गुड रेपुटेशन, obviously the students, they will automatically start to follow us, they will make us role model। तो इसलिए जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ हमारी सोशलाइजेशन का जो फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अदारों से पढ़े, हम कैसे अपने रोल मॉडल हमने बनाए हुए हैं, हमारे मेंटोर्स कौन कौन से हैं,
तो ये सेकंड जो है एस्पेक्ट है। थर्ड है कल्चरल फैक्टर, किस कल्चर में आप रहते हैं। समटाइम्स कल्चर जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, कि हम लाइक यहाँ पे मैंने मिसाल दी है कि ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस का यानी कल्चर है, अगर इंडिपेंडेंस है वहाँ बहुत ज्यादा, तो आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा जो है इंडिपेंडेंस बन जाएगा। जहाँ पे एग्रेशन होगा वहाँ पे ऑब्वियसली आपके अंदर भी वो एलिमेंट जो है आपकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाएगा। जहाँ कंपटीशन की फिजा बहुत ज्यादा होगी जिस माहौल के अंदर, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कंपटीशन के एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। जहां पे कॉपरेशन होगा तो वहां पे कॉपरेशन। तो इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स अबाउट द सर्कमस्टांसिस और द कल्चर जहां पे आप पले बड़े हैं। तो इसलिए मेरी पर्सनैलिटी जो भी अब होगी तो उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, मेरे सोशलाइजेशन जो है वो उसका भी हाथ होगा, मेरे कल्चरल फैक्टर्स का भी हाथ होगा, इसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स, पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर। समटाइम्स हमें ये होता है कि हम लर्न क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन के अंदर हैं। ऐसा भी बात होता है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि जो बड़े समझ लें कि शाई हैं, वो क्लासरूम के अंदर बात नहीं कर पाते, लेकिन हम सिचुएशन उनके लिए ऐसी क्रिएट कर देते हैं, लाइक हम उसके लिए कंफर्ट उसका जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट उसके लिए कर देते हैं, उसके लिए चीज़ें बड़ी फैमिलियर कर देते हैं। वही बच्चा जो एक सिचुएशन के अंदर बहुत शाई है और बात नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर हम उसको ऐसी सिचुएशन दे देते हैं, ऐसा माहौल दे देते हैं कि जहाँ पे उसका कंफर्ट लेवल बहुत बेहतर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी शाइनेस दूर होगी। दैट स्टूडेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट टॉकिंग और शेयरिंग हिज आइडियाज और स्टार्ट to talk in front of the students। तो in the same manner अगर एक बच्चा जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है लेकिन हम उसके लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं जहां पे हम उसको डिस्करेज करेंगे, बात बात पर रोकेंगे, टोकेंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो समटाइम्स सिचुएशन जो है वो भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी के कि जो आज आप हैं उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल है, फैमिली है, कल्चर है, सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, ये सब मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें जस्ट जो हमारी लुक्स हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारी जो स्किन का जो कंप्लेक्शन का जो कलर है वो क्या है, तो ये सारी तो शामिल है ही पर्सनैलिटी के अंदर। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारी एटीट्यूड्स हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो भी क्या है कि वो सारी इसका पार्ट है हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर का। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर, कल्चरल फैक्टर मिलकर, सोशल सिचुएशनल फैक्टर्स मिलकर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर, सब के सब कंबाइंड होकर हमारी शख्सियत को बना रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी हमने अपनी पर्सनैलिटी की बात करनी है तो वो सिर्फ एक हवाले से नहीं करनी, हर तरह से होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो व्हाट डज पर्सनल डेवलपमेंट मीन, हम इस पे काफी डिटेल में बात कर चुके कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। असल में लाइफ जब हम कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जब हम अपनी लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड वेयर वी हैव टू गो एंड हु एम आई, जैसे वो कहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन। तो अगर हम ये यानी थॉट ले लेंगे कि अपने आप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो इट टेक्स टाइम। एक्चुअली वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग अवरसेल्फ। और अगर इसके बरक्स हम अपने आप को क्रिएट करना शुरू कर दें, तो वो तो इसी लम्हे हम क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, राइट एट द मोमेंट, इसी वक्त बैठे बैठे हम अपने फ्यूचर, कहते किसने कहा कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, बेस्ट वे ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर क्या हो सकता है। तो कहने वाले ने कहा कि बेस्ट वे ये हो सकता है प्रिडिक्शन का कि आप फ्यूचर को क्रिएट करना शुरू कर दें। तो हम अपने फ्यूचर को क्रिएट अगर करना शुरू कर दें तो इट इज फार मोर बेटर, बिकॉज इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ये थॉटी, ये पावर हमारे पास होगी। तो इस तरह पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये भी बुनियादी तौर पर हमारी अपनी ही क्रिएशन है कि मैं आज जो हूं वो अपनी, मेरे पास कमांड है कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपने आप को क्रिएट कर सकता हूँ। अपनी तख्लीक जो है, जो मेरे पास है, अपने फ्यूचर को क्राफ्ट करने की जो मेरे पास स्किल है, मैं उस स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो इस वक्त पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को मैं अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये जो
मेरा जो टैलेंट है उस टैलेंट को मैं अपनी एक्सीलेंस के अंदर जो है वो तब्दील कर सकता हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, इसमें आपके पास फ्रीडम है। अगर आप बेस्ट ऑफ टीचर ऑफ द ईयर बनना चाहते हैं, अगर आप द मोस्ट फेवरेट टीचर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन का बनना चाहते हैं, तो इट इज़ इन योर हैंड्स। You may just develop few things to be what you actually want to become. और वो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हमने देखा, कुछ फैक्टर्स हैं विच आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बिल्ड होप एंड ऑप्टिमिज्म। अगर हम होप और ऑप्टिमिज्म की अगर बात करें तो ये ऐसी पावर है, ऐसी कुव्वत है कि जो गिरे हुओं को भी उठा देती है। अगर यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा एक फूल आपको नजर आ रहा होगा, तो यही एक उम्मीद की अलामत है कि हालात चाहे जितने मर्जी सख्त हों, जितनी मर्जी तकलीफ हो, यू हैव गॉट दैट पावर, दैट इनविजिबल पावर इनसाइड यू। और वो क्या है? वो है होप की। ना उम्मीदी को, मायूसी को क्यों हराम कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि इट डिस्करेजेस। ये आपके अंदर की जितनी ताकत है, जितनी एनर्जीज हैं, जितनी पावर्स हैं, जितने पोटेंशियल है, जितने स्किल्स हैं, जितनी एबिलिटीज हैं, जितना नॉलेज है, ये सब जो है वो आप सिर्फ एक मायूसी की वजह से सब का सब ढेर हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल टूटे हुए हैं तो एक उम्मीद जो है, एक ऑप्टिमिज्म जो है, ये आपको क्या करेगी? टूटे हुए को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा। तो इसी तरह से उम्मीद जो है ये स्टूडेंट के अंदर हमने पैदा करनी है। होप जो है, ऑप्टिमिज्म, इसका मतलब ये नहीं है होप या ऑप्टिमिज्म से मुराद हम पर क्या लेते हैं है कि हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारा जो जो भी जिस तरह के मर्जी हालात हों, जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा। और ऑप्टिमिज्म से क्या मुराद लेते हैं? वो सिंपल सा ये है कि हमारे अंदर यानी हमारा एक ये बिलीफ होता है कि हमारे पास वो एबिलिटी है कि जिस तरह के मर्जी हालात हो जाएं, हम इस काबिल हैं कि हम उन सर्कमस्टांसेस का, उन हालात का जो है वो सामना कर सकते हैं। अभी जो है जो विशफुल थिंकिंग है और जो होप या ऑप्टिमिज्म की हम बात करते हैं, दोनों में फर्क भी करना है। जब भी हम होप या ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उम्मीद बराए उम्मीद अगर होगी तो विजुअल थिंकिंग बन जाएगी, जिसके लिए पीछे कोई एफर्ट नहीं होगी, जिसके पीछे कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, जिसके पीछे कोई पैथ नहीं होगा। यू हैव टू एक्चुअली डेवलप अ प्लान टू फॉलो, कि जिसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस होप को और उस ऑप्टिमिज्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस होप को हम अचीव कर सकेंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और अगर हम जस्ट होप ही करेंगे तो वो होप अगर रहेगी और पीछे प्लान कोई नहीं होगा, पीछे एक्शन कोई नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक विजुअल थिंकिंग बन जाएगी। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है होप और ऑप्टिमिज्म देना है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस वी आर आस्किंग आवर स्टूडेंट्स, वी आर टेलिंग आवर स्टूडेंट्स दैट you simply have to become positive. You have to opt a very optimistic approach, that whatever the situation is, whatever the circumstances are, you will simply go through it. And ultimately, once you go through it, you will be having a better future. और बेटर फ्यूचर के लिए हम उनको शाबाश दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ये कैसे डेवलप किया जा सकता है। नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने से जो सेल्फ सजेशन जिसको हम कहते हैं, कि अपने साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो हमें बताना होता है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, कि आज हमने क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आज बच्चों का जो है रिजल्ट जो है इस मरतबा होगा वो 100% होगा और वो अबव एवरेज होगा। ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, खुद को बता रहे हैं। और मेरे बच्चे जो है वो गोल्ड मेडल लेगा, गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा। तो ये सारी चीजें जब अपने आप को सजेस्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप प्लान कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको तो हेल्प करती हैं। और यही ऑप्टिमिज्म अगर स्टूडेंट्स में आप ट्रांसफर कर दें तो ऑब्वियसली वो ऐसा वेपन लेकर जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर कि जो जैसे मर्जी हालात हों वो कभी भी जो है वो मायूसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी एक आजकल तो एक पीछे कुछ न्यूज़ भी ऐसी ब्रेक हुई थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों सुइसाइड कमिट कर रहे होते हैं। उसकी सिंपल सी एक हमने देखा है, रीजन देखी है, कि उनका रिजल्ट जो होता है, जो उनके मार्क्स होते हैं, उनको लगता है कि वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। उनको नहीं पता कि एक खाली एक रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अदारे में पढ़ते हुए खास मज़ामीन पढ़ने के बाद एक छोटा सा एक रिजल्ट आता है,
और वो उस रिजल्ट को अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। उस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो वो बहुत खुश होते हैं, और अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट ना आए तो वो ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे स्टेप्स ले जाते हैं। कोई ट्रोमा में चला जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो वो अपनी पूरी जिंदगी उस चीज को समझ लेते हैं। ये उस्ताद का एक किरदार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको बताएं कि ये जस्ट एक छोटी सी आपकी जो है वो एक अचीवमेंट होगी लाइफ के अंदर, इससे बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती है, छोटी सी आपकी फेलियर होगी। आपने बेसिकली उनको टीच करना है कि हाउ टू हैंडल द फेलियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आएगी, उनको बताना होगा हमने कि ये तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है, तुम्हारे पास और भी चीजें हैं, ये तो एक छोटा सा रिजल्ट है। तुम्हारे पास जो है वो डिफरेंट स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को मेंशन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आप फैमिली को कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, वो कैसे सपोर्ट कर सकता है, उसके पास लीडरशिप की स्किल्स हैं, उसके पास जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स हैं। देयर आर आई मीन सो मेनी वेज टू टेल दैट स्टूडेंट के हाउ एक्चुअली ही और शी कैन कोप विद द सिचुएशन। तो ये ऑप्टिमिज्म और होप जो है, ये अगर हम में डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ट्रांसफर this aspect of our personality to our students, which is quite important. Secondly, अगर हम देखें तो finding balance is always crucial, because most of the time what happens, हम बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रेस क्या, बाज़ का क्या, अक्सर औक़ात स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उसकी एक वजह क्या होती है पीछे? उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये होती है कि हम अपनी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, जो पर्सनल लाइफ़ है, उसको मिक्स अप कर देते हैं। यानी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने के आदी नहीं होते। लाइक पूरे महीने का या पूरे हफ़्ते का या पूरे दिन का जो काम है, हम उसको लिखने के आदी नहीं होते। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं की होती, हमने अपनी एक्टिविटीज़ को लिखा नहीं होता, हमने अपना स्केड्यूल जो है वो बनाने के हम आदी नहीं होते। तो उससे क्या होता है कि अपने घर के सारे काम जो है, वो हम क्या करते हैं, वो अपने ऑफ़िस ले जाते हैं, और ऑफ़िस के सारे काम जो है वो घर लेकर आ जाते हैं। मतलब क्या है, मुराद क्या है कि घर जाकर भी हमारे ख़्याल जो होता है वो अपने ऑफ़िस का ही होता है, हमें अपने कॉलेज का ही होता है। और जब हम घर से निकलते हैं तो ऑफ़िस का ख़्याल है, और जब हम घर पहुँचते हैं तो फिर भी ऑफ़िस का ख़्याल है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है। यानी अगर हम सारा काम जो है, हमें पता है कि हमने रिसर्च भी करनी है, हमने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च के ऊपर काम भी करवाना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई असाइनमेंट दी है, हमने उसको भी करना है, हमने अपना लेक्चर जो है उसको भी प्रिपेयर करना है। हमने बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं, हमें अपने फाइनेंशियल मैटर्स भी, अपने सोशल जो है लाइफ है उसके मैटर्स भी जो है ना, उनको भी हमने जो है मैनेज करना है। लेकिन मैनेज कैसे करना है, दैट इज़ एन आर्ट। अगर आप यानी अगर बैलेंस जो है वो क्रिएट करना जान जाएँ, समझ जाएँ, जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उसको उतनी इम्पोर्टेंस देना यानी समझ जाएँ कि कैसे देनी है, तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी आप जो हैं वो अगर ऑफ़िस जा रहे हैं, तो ऑफ़िस जाते हुए क्या आपने कुछ घर का सामान वग़ैरह उठाया होता है साथ? क्या कभी आपने साथ अपने पोटैटोज़ उठाए हुए हैं कि जी आज जाकर जो है ऑफ़िस में जाकर वो सब्ज़ी बनाते हैं, तो चलो कुछ इस तरह का काम कर लेते हैं, या सिलाई का काम है तो वो उठाकर आप ले गए कभी कॉलेज के अंदर? ऐसा कभी नहीं करते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप घर का सारा सामान उठाकर कॉलेज नहीं लेकर जाते, वहाँ पे एक्टिविटी ऐसी नहीं कर रहे होते, तो आप अपने कॉलेज की सारी चीज़ें जो हैं, सारी टेंशन्स जो हैं, सारे मसाइल जो हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ जो आपने करनी होती हैं, कॉलेज के कैंपस के अंदर करनी होती है, उसको उठाकर अपने घर क्यों लेकर चले जाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये सिर्फ़ ये इसकी रीज़न होती है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं कर पाते, सही तरीके से अलाइन नहीं कर पाते। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे, अलाइन करना शुरू कर दें चीज़ें, तो ऑब्वियसली चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इसी तरह से क्रिएट एंड लर्न। क्रिएटिविटी की मैंने पहले भी बात की है, लर्निंग की बात की है कि क्रिएटिविटी is one of the most important aspect of our personality. तो it must be there. हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। एज अ टीचर जो है हमें नए नए आइडियाज़ जो हैं प्रमोट करने पड़ेंगे, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है हमें लिखवाना पड़ेगा, उनसे आइडियाज़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। इसी तरह से अगर हम देखें गिव, वी नीड टू लर्न टू गिव। अब गिव क्या था, गिव क्या है,
बुनियादी तौर पर कहते हैं कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाला नहीं, ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ के बराबर कभी नहीं हो सकता, ऊपर वाला हाथ हमेशा ऊपर ही होता है। और हम क्या कर सकते हैं अपने अदारे के अंदर जो है बच्चों को टाइम दे सकते हैं। समटाइम्स जैसे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाते उनको, तो अगर हम ये करें कि उनको बच्चों को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दें अदर देन द क्लासरूम, अगर हम उनको शाबाश देना शुरू कर दें, अगर हम उनको स्माइल पास करना शुरू कर दें, अगर हम अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ यानी जो जूनियर्स हैं उनको हम कोच करना शुरू कर दें, गाइड करना शुरू कर दें, और अपने जो सीनियर्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, और अगर हम अपना ऐसी वहाँ पे यानी एक्टिविटीज जनरेट करना शुरू कर दें कि जहाँ पे लोगों को ये इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाए कि भाई अगर कहीं पे अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही तो फलां शख्स आपके पास मौजूद है कि जो आपकी बात सुनेगा, आपको टाइम देगा, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो इसी तरह से गिविंग से क्या होगा, गेट टू हेल्प अदर्स। अच्छा, इससे होगा क्या, आप जब वॉलंटियर कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात होती है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसी तरह से जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे भी आपका जान का छुट यानी जान जो छूट रही होती है, छुटकारा मिल रहा होता है, और आपकी इसमें डिप्रेशन में भी ये हेल्प कर रहा होता है, हार्ट की डिजीजेज है उसमें भी जो है ये एक्टिविटी जस्ट गिविंग वाली जो वॉलंटियरिंग करने वाली है उससे आपको उन चीज़ों से भी आपको निजात मिल रही होती है। तो ये इसके कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है बेनिफिट्स भी होते हैं। बी ग्रेटफुल यानी बी ग्रेटफुल, इट्स नॉट हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स अस ग्रेटिट्यूड, इट्स ग्रेटिट्यूड दैट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस। हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहते हैं अल्लाह ताला किन किन नेमतों का तुम शुक्र अदा कर सकते हो, हम नहीं शुक्र अदा कर सकते। हम एक सांस का भी शुक्र अदा जो है वो नहीं कर सकते। अगर एक लम्हे के लिए हमारी सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाए, उन लोगों से पूछें कि जो मरीज हैं, तो वो सांस जो है वो लेना उनके लिए कितना कीमती बन जाता है। तो इसलिए अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो ब्लेसिंग्स कभी भी काउंट नहीं होंगी। तो इस वजह से हर वक्त हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बच्चे जो आपको देखकर आपके क्लासरूम में एंटर होते हैं तो खड़े होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। वो लोग जो गेट कीपर हैं आपको देखकर दरवाजा खोल देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। वो जूनियर्स के जो आपकी तरफ जो है वो हेल्प के लिए आते हैं, तो आप उनका भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उन्होंने आपको मौका दिया कि आप जो है उनकी हेल्प कर सकें। तो शुक्रिया जो है, शुक्र जो है अदा करने के लिए कोई भी वेट नहीं करना पड़ता, बहुत सारे मौके हैं, आप हर लम्हे कर सकते हैं। इंक्रीज ह्यूमर, ह्यूमर जो है, ह्यूमर थेरेपी जो है, लाफ्टर थेरेपी जो है, दिस इज़ वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्लासरूम के अंदर ये नहीं कि जोक्स करें, ये नहीं कि हम कोई जोक और मजाक और फन यानी इस तरह का हो क्लास के अंदर, नो नॉट एट ऑल। आप लाफ्टर होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर समटाइम्स, लेकिन वो एक इस तरह से कि लाइट एक ऐसा मूड ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ना कि वो जोकर्स की तरह हमें कोई इस तरह का कोई एक्टिविटी जो है, इससे मुराद यहाँ पे ये है हमारी ह्यूमर थेरेपी के अंदर, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि उस्ताद हैं, उस्ताद का एक मकाम है, तो कतन इससे मुराद नहीं है कि हम वो उस तरह के जोक्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक लाइट माहौल बनाया जाए जहाँ पे आप बच्चों के डिप्रेशन को, उनकी टेंशन को, उनके स्ट्रेसेस को जो है वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं। बिकॉज एक अच्छा उस्ताद हमने देखा हुआ है कि वो अपने हंसी मजाक के अंदर बिल्कुल लाइट वे के अंदर, बिल्कुल हल्के से जो माहौल के अंदर जो है ना उसको जो है माहौल को बिल्कुल बेहतर कर देता है हमारे लिए, और वो चीज़ें जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो इसलिए आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम पहलू था ह्यूमर का। इसी तरह से रेजिलियंस है, रेजिलियंस है बर्नआउट एंड रेजिलियंस। बर्नआउट क्या है, बर्नआउट एक रिस्पॉन्स है जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, काम कर रहे हों, तो वो एग्जॉशन की वजह से आप एक यानी समझ लें कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जिस वक्त आपका दिल चाहता है कि मैं जॉब भी छोड़ दूं, मैं सारे काम छोड़ दूं, मैं कहीं निकल जाऊं, दौड़ जाऊं, भाग जाऊं, तो ये बर्नआउट की कैफियत जो हो रही होती है। और उसकी वजह क्या होती है कि जब हम चीज़ों को परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, जब हम परफेक्शन की तरफ जाना, जब हमारे पास स्किल्स नहीं होती मैटर के साथ कोप करने की, स्ट्रेस के साथ कोप करने की, हमारी पर्सनल कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, और हमारे पास अपने टाइम को जब हम सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते, हम चीज़ों के ऊपर रिग्रेट करते हैं, हमारे पूरे रिलेशनशिप होते हैं कोलीग्स के साथ, लैक ऑफ टाइम हमारे पास होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमें बर्न आउट का शिकार कर देती हैं। इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स हैं। रेजिलियंस की हमने बात की, रेजिलियंस का मतलब क्या है, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स, यानी डॉक्टर्स का भी कहना है कि जब तक आपके हार्ट की जो हार्ट बीट है उसकी लाइन अप और डाउन होती रहेगी तो आपकी जिंदगी की इलामत है। अगर लाइफ के अंदर यही लाइन अगर रुक जाए, स्ट्रेट हो जाए, अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाए, तो लाइफ एंड हो जाती है। तो इसी तरह से मेक यानी वन स्मॉल चेंज, अब छोटा सा चेंज
बिल्कुल स्मॉल चेंज आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बना लें, मसलन आप क्लास को वेलकम करना शुरू कर दें विद अ स्माइल। अगर आप कोलीग्स को सुबह-सुबह जाकर स्माइल के साथ, मुझे आज भी याद है कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो जब भी कॉलेज में तशरीफ़ लाते हैं, वो कहीं छोटा है, कोई बड़ा है, मैं उनको देखता हूँ, कई कई मरतबा उनसे सीखा भी है, उस्ताद भी हैं मेरे। तो मैंने देखा कि वो ये नहीं देख रहे होते कि कोई छोटा है या बड़ा है, वो देखकर खुद 2-4-10 कदम चलकर उस तरफ आते हैं और खुद आकर उनसे शेक हैंड कर रहे होते हैं, उनका हाल-चाल पूछ रहे होते हैं। वो एक छोटा-सा एक्ट होता है, लेकिन वो छोटे से एक्ट ने क्या किया कि पूरे कॉलेज के अंदर यानी उनके इज़्ज़त और एहतराम और मकाम के अंदर जो है वो चाँद लगा दिए। यानी इस तरह के मैंने देखा कि वो छोटा-सा एक एक्ट, यानी एक छोटी-सी स्माइल, एक छोटी-सी शाबाश जो है, वो कहाँ से कहाँ आपको उठाकर ले चली जाती है। ये अब मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक छोटा-सा एक्ट, लाइक आपने सिर्फ़ डिसिप्लिन कायम कर लें, कुछ ना करें, सिर्फ़ एक छोटा-सा एक्ट करें कि डिसिप्लिन आज से हमने मेंटेन करना है। तो वो डिसिप्लिन जो है, वो सिर्फ़ मेंटेन करने से देखेंगे कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। हमारी ज़िंदगियों में तो आना ही आना है। बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ़ के अंदर भी आ जाएगा। सिर्फ़ एक छोटा-सा एक्ट, कोई बड़ा ना करें। एक्सेप्ट कर लें गोल कि लाइक वी सिंपली हैव टू सेट अ गोल, स्मॉल चेंज। स्मॉल कुछ भी हो सकता है, एक स्माइल हो सकती है, एक डेली एक अच्छी बात क्लास में हमने डेली करनी है, एक नई बात करनी है। तो ये कुछ भी इस तरह का एक्ट जो है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने देखा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से है कि ट्रस्ट डेवलप करें, इंडिपेंडेंस को लर्न करें, इनिशिएटिव लेना सीखें, स्किल्स को डेवलप करें, अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश इंटीमेसी, क्रिएट एंड नर्चर, लुक बैक विद एक्सेप्टेंस। इसी तरह से पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के अंदर किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और अपना इमेज जो है उसको बेहतर करें, एटिकेट्स होने चाहिए ड्रेस के, अप्रोप्रिएटली प्लान करना सीख लें, बेटर पब्लिक स्पीकिंग कर लें, सेट गोल्स यानी स्मार्ट गोल्स जो हैं रखें लाइफ के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लें, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर लें। इन द एंड ये है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। तो दिस इज द एंडिंग के पेन जो है, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि हर सक्सेस से पहले जो है पेन जो है वो मस्ट है। तो पेन को बर्दाश्त करना, लर्न करना सीख लें, कैसे मैनेज करना सीख लें, तो सक्सेस इज देयर इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली। थैंक यू सो मच सर। मैं जो जी माइक्स है वो इनेबल कर देती हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और जो भी है ना 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछें। जी प्लीज। Assalamu alaikum, sir. This is जी Jamshed. जी सर। Sir, first of all, it was a very good lecture. इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमें सीखने को भी मिली. Thank you very much for that. लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे होते. देयर आर सर्टेन ग्राउंड रियलिटीज़. मतलब थियोरेटिकली ये बातें सारी हमें दे लुक वेरी गुड, बड़ी अप्रोप्रिएट लगती हैं, बट व्हेन वी गो वी फेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस. मतलब वो चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, जो गॉड एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके को वर्कर्स के भी हो सकते हैं, आपकी क्लास की इंटेलेक्ट के भी हो सकते हैं. सो हाउ डू वी कोप अप विद दीज ग्राउंड रियलिटीज, दीज चैलेंजेस? Actually, sir, it depends upon the nature of the challenge. Sometime what I have talked about, actually I have talked about the various skills, and these skills entail like negotiation skills, stress management skills, classroom management skills, team building skills. So this is all about your skills. Actually, how do you communicate with the people? Actually, it really matters. ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें बुनियादी तौर पर कहीं यानी ग्राउंड से हट कर नहीं आई, इसी ग्राउंड से जन्म लिया है इन्होंने। क्रिएटिविटी की हम बात करेंगे तो इसी ग्राउंड से जन्म लिया है सर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने की, तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं जो मैनेज नहीं कर पाते। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होता है? ये नहीं कि वहाँ पे अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। हर डिफिकल्टी के साथ एक सोल्यूशन मौजूद होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इक्विप्ड किया गया है
क्या हमें उसके लिए इतना ट्रेंड किया गया है कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है तलाश करें? एक ही तरह का माहौल होता है जहाँ पे 2 तरह के लोग हमें देख रहे होते हैं। एक यानी ऐसे लोग हैं कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस अदारे को छोड़ने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दूसरे अफ़राद हैं कि वो वहीं पे अच्छे तरीके से भी रह रहे होते हैं। तो डिफ़रेंस कहाँ पे आ रहा होता है? डिफ़रेंस हमें ये हमारा यहाँ पे आता है कि हम उनको हैंडल कैसे करते हैं? मैटर को, सिचुएशन को जो है वो मैनेज कैसे करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो इसलिए अगर स्पेसिफ़िक वे में देखें तो हमें क्या चाहिए? अगर आप सीनियर लोगों की बात करते हैं, तो सीनियर लोगों को हमें पता होना चाहिए क्या चाहिए। दे नीड रिस्पेक्ट। जूनियर्स को क्या चाहिए? दे नीड गाइडेंस। स्टूडेंट्स को मतलब क्या चीज़ चाहिए? तो उनको हमें रिस्पेक्ट सिखानी पड़ेगी सो दैट वी शो देम आवर वैल्यूज़। तो ये डिपेंड हमें ये करता है, हम पर करता है कि हम किस सिचुएशन के अंदर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं और वो सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रही है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये प्रोफेसर जमशेद साहब की बात का जवाब आप में ऐड करूँगा कि सर। हमने अवेलेबल जो सर्कमस्टेंसेस है उनके अंदर रह के काम करना होता है, उसमें जितना बेहतर कर सकें, बिकॉज Exactly. आवर जर्नी इज़ फ्रॉम बीइंग टू बिकमिंग, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। हम जब तक बिकमिंग की तरफ नहीं जाते, वो गियाम्बात्तिस्ता वाइको एक इटालियन राइटर है, उसकी बुक है द ह्यूमन सिपियंजा पोएटिका, द ह्यूमन जी बीइंग इज सर। अ मेकर। We जी सर। cannot survive until we become a creator or maker, because this is a competitive world and the people, they are forming their policies according to the needs of their economy and targets. So this is Exactly. what we need at this time. We cannot survive in this world until we become a story creator. We cannot be survive with this being a story reader. So this is Exactly, what sir. I just want to say. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the addition, sir. Thank you very much. Salam, जी, anyone sir. else, please? जी, वालेकुम सलाम। सर फरहान अली, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोरा रोड झंग से। सर। सर सवाल ये है कि ये अक्ल शऊर की बलीदगी के लिए किरदार साजी के हवाले से कि हम कैसे जो है वो सही और गलत की कसवटी पैदा कर सकते हैं। एक तो इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। दूसरा ये है कि ये करैक्टर बिल्डिंग में हमारे, चूँकि हम मज़हबी खित्ते से बिलॉन्ग करते हैं, तो मज़हब का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। सर। तो इस हवाले से भी ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। शुक्रिया। सर, सही या गलत की पहले आपने बात की कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो सर ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेट स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमारे 2 तरह के हैं। एक तो है हमारे सोशल सेटिंग्स के अंदर जो हमारी नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं। अगर तो हम अपने सेट स्टैंडर्ड जो सोसाइटी ने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो लॉज़ सेट किए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हमें एप्रिसिएशन मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि हम सेट स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हैं। अगर हम इशारा तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली नो वन लाइक्स इट। वी वायलेट द आई मीन सिग्नल्स। तो ये कोई भी यानी इस वायलेशन को पसंद नहीं करता। तो ये सेट स्टैंडर्ड है कि हमें इसको फ़ॉलो करना है, हमें रुकना है, इशारा रेड लाइट ऑन हो तो हमें रुक जाना है। और इस वजह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ से हम लेते हैं? हमने अपनी सोसाइटी से लेते हैं, जो कि कुछ हैं कानून बनाए हुए हैं, मैन मेड हैं, सोसाइटी की डिमांड है। और सेकंड ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गुनाह की या मतलब लिस्ट में अगर हम उसको शामिल करें, तो वो कुछ हैं मज़हब से आ रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सही या गलत के हवाले से कि जो हमें हमारा रिलीजन जो है हमें दे रहा होता है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि हमने कैसे डिफ़ाइन करना है कि कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी गलत है, कौन-सी, तो वो डिफाइन करने के लिए हमें सोसाइटी का और इसका जी देखना पड़ेगा। तो सेकंड जो है आपका जो सवाल है हाँ, मज़हब के हवाले से। तो सर ऑब्वियसली तो मज़हब के हवाले से अगर हम बात करें तो मज़हब जो है इसके बगैर तो हमारा गुज़ारा ही नहीं ना, बीइंग अ मुस्लिम। तो हमें जो मज़हब जो हमारी जो शरिया जो हमें सबक देती है, सिखाती है, तो उसके ऊपर तो बेशुमार किताबें लिखी हुई हैं, बेशुमार उलमाए कराम मौजूद हैं कि जो हमें इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। तो उसमें करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से सबसे तो एक शख्सियत हमारे पास है, वो ख़ातमुल नबीयीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे सामने हैं, हमारा रोल मॉडल हैं, सबके लिए हैं। तो वो हमारे पास मौजूद हैं, अगर मज़हबी हवाले से अगर आप देखा जाए, अगर मुआशरे के हवाले से देखा जाए तो वो सेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप यहाँ से अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको सर ले सकते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद अमवाज सिद्दीकी लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने स्ट्रेस की बात की।
अगर चले वर्क प्लेस पे स्ट्रेस की तो समझ आती है, आपने कहा कि हमारे पास कुछ टूल जैसे होने चाहिए, हमें उसको कोप करना चाहिए, बट व्हाट इफ के कोई मतलब फैमिली से अपने कोई स्ट्रेस, यानी कोई टीचर जो है, ज़्यादा हर बंदे की अपनी फैमिली होती है, अपने सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो कोई वहाँ से स्ट्रेस लेके आ रहा है और वो कुछ ऐसी मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में है कि उनको अवॉइड भी नहीं कर सकता, तो एज अ टीचर वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, तो हाउ ही विल मैनेज दैट? वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल्स की मैंने बात की, हमने सीखना है कि स्किल को स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए